9 PM پرائم نیوز میں میں ہوں آپ کے ساتھ شیرین ذوالفقار اور میں ہوں جواد کمال۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں۔ سابق وزیر اعظم اور نون لیگ کے رہنما شاہد خاقان عباسی کا نیوز ون کے پروگرام پرائم ٹائم وتھ ٹی ایم میں بڑا انٹرویو۔ انہوں نے آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کے لیے قانون میں ترمیم کو بڑی غلطی قرار دے دیا۔ کہا یہ قانون سازی فوج اور اس کے نظام کے لیے نقصان دہ ہے۔ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع سے متعلق ترامیم کو تاریخ قبول نہیں کرے گی۔ مدت ملازمت میں توسیع سے متعلق قانون میں کی گئی ترمیم کو واپس کرنا پڑے گا۔ قانون میں کی گئی ترامیم پر نون لیگ نے حمایت کر کے غلطی کی۔ اس طرح کی ترمیم بالکل نہیں ہونا چاہیے تھی۔ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کا فیصلہ حکومت اگست میں کر چکی تھی اور اس کا اعلان بھی کیا جا چکا تھا۔ نومبر میں معاملہ سپریم کورٹ نے پارلیمان کو بھیجا۔ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع سے متعلق قانون سازی کی نون لیگ سمیت تمام سیاسی جماعتوں نے حمایت کی تھی۔ دیکھیں ایکسٹینشن والا معاملہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ قانون کی امینڈمنٹ یہ غلط ہے، یہ فوج کے لیے نقصان دہ ہے، فوج کے نظام کے لیے نقصان دہ ہے۔ جو آرمی چیف کی ایکسٹینشن تھی، جو موجودہ آرمی چیف ہیں، وہ اس وقت اناؤنس ہو چکی تھی۔ ٹھیک، وہ حکومت اناؤنس کر چکی تھی اگست کے اندر کہ ایکسٹینشن ہو گئی ہے۔ یہ معاملہ تو نومبر میں جا کر سپریم کورٹ نے پارلیمان کے پاس بھیجا، اور میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ اس وقت آپ کو فوج کو امبیرس نہیں کرنا چاہیے۔ ایک فیصلہ حکومت نے کر دیا، اختیار بھی حکومت کا تھا، اس سے پہلے بھی ایکسٹینشنز ہوئی ہیں۔ یہ تو سپریم کورٹ نے اپنے اختیارات استعمال کر کے والا پارلیمان کے بعد بھیج دیا، لیکن جو قانون میں امینڈمنٹ ہوئی ہے وہ اس کو تاریخ جو ہے وہ قبول نہیں کرے گی، اس کو آپ کو واپس امینڈ کرنا پڑے گا۔ تو اس کے اندر تو آپ بھی شریک تھے؟ کس کے اندر؟ اس جو بھی اس وقت فیصلہ جی، ہوا، تو میں نے کہا نا یہ غلطی ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے، یہ غلطی ہوئی ہے۔ جو قانون کی امینڈمنٹ جو ہے وہ اس طرح نہیں ہونی چاہیے تھی۔ بہرحال یہ جماعتوں کے فیصلے ہوتے ہیں، یہ ہم سب نے اس کو فیصلہ اس پر ووٹ دیا ہے۔ میں اس دن وہاں موجود نہیں تھا، لیکن میری جماعت نے ووٹ دیا تو میں نے ووٹ دیا، پوری پاکستان نے ووٹ دیا، ہر جماعت نے ووٹ دیا۔ قومی اسمبلی میں منی بجٹ بل پیش کر دیا گیا۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف برس پڑے، خطاب میں کہا معیشت سکڑ چکی ہے، دفاعی ضروریات پوری کرنے کے لیے بھی قرضے لینا پڑیں گے۔ منی بجٹ سے ہمارے پاؤں بیڑیوں میں جکڑے جائیں گے، ایک ہاتھ میں کشکول دوسرے میں ایٹمی طاقت، کیا آپ ساتھ چل سکتے ہیں؟ ہمیں بہت کچھ سمجھ کر فیصلے کرنا ہوں گے۔ پی ٹی آئی حکومت نے ایک چیئرمین مہارت حاصل کی ہے، وہ یو ٹرن۔ یہ ہے ان کی کارکردگی ان 3.5 سالوں کی، جس کے نتیجے میں پاکستان کی جو معیشت جو ہے، مجھے مجبوراً کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ دم توڑ رہی ہے۔ ان کو ڈیفنس کے لیے کم سے کم 30-40% قرضے پکڑنے پڑیں گے ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اس منی بجٹ جو کہ سراسر ہمارے پاؤں بیڑیوں میں جکڑے جائیں گے، ایک ہاتھ میں آپ کشکول لے اور دوسرے ہاتھ میں آپ کا ایٹمی طاقت ہو، یہ کبھی ہو سکتا ہے؟ کبھی آگ اور پانی اکٹھے چل سکتے ہیں جناب اسپیکر؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ بہت ہمیں سوچ سمجھ کے یہ فیصلے کرنے ہوں گے۔ پی ٹی آئی گورنمنٹ جس نے ایک ہی چیز میں، ایک ہی ایریا میں بہت اعلیٰ مہارت حاصل کی ہے، وہ یو ٹرنز۔ ہر بات جو دعویٰ کرتے ہیں اس کے اوپر مکر جاتے ہیں۔ وفاقی وزیر اسد عمر نے کہا ہے کہ آصف زرداری کو علی بابا 40 چور کہنے والا آج درس دے رہا ہے۔ پاکستان کو گرے لسٹ میں فیٹف نے نون لیگ کی حکومت میں ڈالا۔ مزید کہا کہ اگر زرداری کا لوٹا پیسہ ملک لے آتے تو آئی ایم ایف نہ جانا پڑتا۔ قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے اسد عمر بولے، گزشتہ حکومت دودھ اور شہد کی نہریں نہیں چھوڑ کر گئی تھیں، ہم شہباز شریف کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں۔ لیڈر آف اپوزیشن آصف علی زرداری کو کیا کہتے تھے؟ علی بابا اور 40 چور۔ گرے لسٹ میں پاکستان کو فیٹف نے مسلم لیگ نون کی حکومت میں ڈالا تھا۔ کدھر گیا وہ پیسہ؟ اگر وہ پیسہ لے آئے ہوتے تو شاید آئی ایم ایف جانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ ذرا یہ بھی یاد دلا دیں کہ جب یہ حکومت چھوڑ کے گئے تھے، دودھ اور شہد کی ندیاں جس میں بہہ رہی تھیں تو صورتحال کیا تھی؟ یہ دودھ اور شہد کی ندیاں چھوڑ کے گئے تھے، جو آج بول رہے ہیں کہ معیشت کو تباہ کر دیا گیا۔ لیکن چلے ہم یہ بولتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہم بیٹھنے کو تیار ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے پاکستان کو سستا ملک اور مہنگائی کو عالمی مسئلہ قرار دے دیا۔ 14ویں انٹرنیشنل چیمبرز کے افتتاحی اجلاس سے خطاب میں کہا کہ منی بجٹ کا
आम आदमी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। माफियाज ने अफरा तफरी फैलाई हुई है, करप्शन के खिलाफ जंग पूरे मुआशरे ने लड़नी है, मैं तो इसे जिहाद समझता हूँ। ये हमें नाअहल कहते हैं, हमारी हुकूमत ने कौम को तमाम बहरानों से बचा लिया। अभी भी पाकिस्तान सस्ता है। आज अब ये पाकिस्तान की महंगाई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सारी दुनिया में तकलीफ में लोग महंगाई। जो बाइडन को डोनाल्ड ट्रंप अटैक कर रहा है कि महंगाई के ऊपर, सब्जियां वगैरह टमाटर और प्याज बेच के तो खुशहाल नहीं होंगे। हम अगर एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ाएंगे तो हम सारा वक्त जाके फंस जाएंगे IMF के साथ। पॉलिटिकल माफियाज बैठे हुए जो कानून के नीचे नहीं आना चाहते, ये ताकत की हुक्मरानी चाहते हैं। सिर्फ इमरान खान ने नहीं लड़ी, अब सब ने लड़ी है। कहते हैं कि बड़ी नाहल हुकूमत थी, तो अगर नाहल हुकूमत थी तो कॉर्पोरेट से भी बचा लिया, बिजनेसेस को भी बचा लिया, बेरोजगारी से भी बचा लिया। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, जिसके बाद आप देख सकेंगे मरी में दाखिला पाबंदी में तोसी, PSL टिकट्स की फरोख्त शुरू। वफाकी काबीना का शहबाज शरीफ के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करने पर इत्तफाक। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि नवाज शरीफ की बीमारी धोखा था, शहबाज शरीफ अपने भाई को बाहर भिजवाने के फ्रॉड में मुलव्वस हैं। फवाद चौधरी ने बताया कि काबीना ने कोरोना की नई लहर में लॉकडाउन और तालीमी इदारे बंद न करने का फैसला किया है। शहबाज शरीफ उन्होंने अदालत से रुजू किया और उनकी शख्सी एफिडेविट के ऊपर नवाज शरीफ जो हैं वो मुल्क से बाहर गए। नवाज शरीफ का बाहर जाना एक मुकम्मल फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन थी, एक मुकम्मल फ्रॉड था। लिहाजा अटॉर्नी जनरल को हदायत की है वफाकी काबीना ने कि वो लाहौर हाई कोर्ट से शहबाज शरीफ को तलब करके वो अपने दिए गए बयान हल्फी के मुताबिक नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस लाने के इक़दाम करें। पाकिस्तान में कोविड की शरह दुगनी हो गई है और यूँ लग रहा है कि ये जो वेव है दोबारा पाकिस्तान में भी कोविड की शुरू होगी, लेकिन इस बार ये हमारा रिजॉल्व है कि पाकिस्तान को बिल्कुल भी हम लॉकडाउन नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट बार ने ताहयात नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त का इब्तदाई मुसव्वदा तैयार कर लिया। मुसव्वदे के मुताबिक ताहयात नाअहली का उसूल का इतलाक सिर्फ इंतखाबी तनाज़ात में इस्तेमाल किया जाए। आर्टिकल 184 की शिक़ 3 के इख्तियार के तहत सुप्रीम कोर्ट बतौर ट्रायल कोर्ट उमूर अंजाम नहीं दे सकती। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन भुवन का कहना है कि आर्टिकल 62(1)(f) से मुताल्लिक दरख्वास्त तैयार कर ली है, जल्द दायर की जाएगी। साबिक़ सदर आसिफ ज़रदारी इन हाउस तब्दीली के लिए पुरुमीद है, कहते हैं कि पहले दिन ही कहा था कि इनसे हुकूमत नहीं चलेगी। वक्त ने साबित कर दिया ये नाअहल लोग हैं, आवाम तंग है और हुक्मरानों से कुछ नहीं हो रहा। आसिफ ज़रदारी ने पीपल्स पार्टी की PDM में दोबारा वापसी का इम्कान मुस्तरद कर दिया। क्या पीपल्स पार्टी दोबारा PDM का हिस्सा बनने जा रही है? मुझे नहीं पता बेटा, मैं नहीं समझता हूँ कैसा हो। मैं तो चाहता हूँ कि ये हुकूमत पहले दिन चली जाए। मैंने तो पहले दिन कहा था कि ये नामाकूल है, इनसे हुकूमत नहीं चलाई जाएगी और अब तो तारीख ने प्रूव कर दिया है, वक्त ने प्रूव कर दिया। जो हालात हैं अवाम के, इसमें इनसे कुछ नहीं हो सकता। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें दाखिली सिक्योरिटी सूरत हाल और बॉर्डर मैनेजमेंट पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में ऑपरेशन रद्दुल फसाद में पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया गया। आर्मी चीफ ने मरी और बलूचिस्तान में फॉर्मेशंस के रिलीफ ऑपरेशन को सराहा। कौमी सलामती पॉलिसी का निस्फ हिस्सा पब्लिक करने का फैसला कर लिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म जुमे को गैर खुफिया पॉलिसी के इनेकाद का इजरा करेंगे। पॉलिसी के अहम नुकात भी सामने आ गए हैं। पॉलिसी इकॉनमी, मिलिट्री और ह्यूमन सिक्योरिटी के 3 बुनियादी नुकात पर मुश्तमिल है, जिसमें इकॉनमी सिक्योरिटी को मरकजी अहमियत दी गई है। खित्ते में अमन, राबिताकारी और हमसाय ममालिक के साथ तिजारत पॉलिसी का बुनियादी नुक्ता होगा। हाइब्रिड वॉरफेयर भी कौमी सलामती कमेटी का हिस्सा होगा। मसला कश्मीर का हल पॉलिसी की तरजीहात में शामिल है। हम वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। खबर यह है कि शाहरुख शतोई और दीगर मुजरिम अस्पताल में हैं, लेकिन सानह मरी की तरह कोई मरा तो नहीं। शाहरुख शतोई के अस्पताल में मौजूदगी पर वज़ीर आला सिंध की अनोखी मंतक। कहा मामले की मुकम्मल इंक्वायरी होगी, जो भी मुलविस हो उसे सजा दी जाएगी। ऑब्वियसली कोई हुकूमत से परमिशन नहीं, जो भी इसके जिम्मेदार होगा उसको हम ये नहीं कहेंगे कि इंतजामिया ने बड़ा अच्छा काम किया है।
मतलब शाहरुख जतोई, या फिर तो मुझे पता चला 2-3 और भी नाम आए हैं 10 लोग सर। जो इस तरीके से थे। जिसको भी होगी इंतजामिया जो इसमें इन्वॉल्व रहा उसको सजा दी जाएगी। किसी की डेथ नहीं हुई, कोई सर्दी में ठिठर के पूरे खानदान नहीं गए। लेकिन मुझे बड़ी अच्छी बात है, मीडिया पे मुझे बड़ा फख्र है कि कल सारा दिन उन्होंने ये चलाया है। लेकिन मैं आपको बिल्कुल क्लियरली कह रहा हूं, जो भी इसमें जिम्मेदार होगा उसकी पूरी इंक्वायरी होगी, जो भी जिम्मेदार होगा उसको सजा मिलेगी। इस्लामाबाद में मोनाल रेस्टोरेंट को सील कर दिया गया, दाखिली रास्ते बंद कर दिए गए। असिस्टेंट कमिश्नर राना मूसा ने मोनाल रेस्टोरेंट को सील कर दिया। मोनाल रेस्टोरेंट में मौजूद फैमिलीज को बाहर निकालने के लिए चंद घंटों की मोहलत दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मोनाल रेस्टोरेंट को सील करने का हुक्म दिया था। अदालत ने सीटीए को नेवी गोल्फ क्लब का कब्जा देने का भी हुक्म दे दिया। और मरी में दाखिले पर पाबंदी में मजीद 6 रोज की तौसीह कर दी गई। मरी और गिरदनबाह में मंगल को मौसम साफ हो गया, धूप निकल आई। इलाके में मामलाते जिंदगी बहाल होने लगे हैं। बर्फ फेंककर रास्ता बंद करने वाले नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुल्ज़िमान रास्ता बंद होने पर फंसी हुई गाड़ियां निकालने का सयाहों से भारी मुआवजा वसूल करते थे। उधर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अपने बयान में कहा है कि मरी वाक़े की तहकीकात का आगाज़ हो चुका, कोताही के जिम्मेदार सजा से नहीं बच पाएंगे। ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए प्लानिंग की जा रही है। हम वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। बलदियाती कानून के खिलाफ जमात इस्लामी का सिंध असम्बली के बाहर धरना 12वें रोज भी जारी। हाफिज सईमुर रहमान कहता है कि काले कानून के खिलाफ पूरे सिंध में एहतजाज किया गया। लोगों की शिरकत से हमारा हौसला बढ़ गया है। वडेरा शाही की मिसाल देखनी हो तो शाहरुख जतोई केस देख लें। पीपल्स पार्टी के जराइम में MQM का साथ रहा है। पूरे सिंध के हर डिस्ट्रिक्ट में एहतजाज हुआ है। जिस तरह से एहतजाज हुआ है उसने इस प्रोपेगेंडे को खत्म कर दिया है। पंजाब भर से लोग आकर हमसे इज़हार यकजहती कर रहे हैं, इस्लामाबाद से लोग आकर हमसे इज़हार यकजहती कर रहे हैं, तो इससे हमारा हौसला बढ़ रहा है। वडेरा शाही की अगर कोई मिसाल देखनी हो तो शाहजेब जतोई केस देख लीजिए और उसमें वडेरा और उनकी औलादें शाहरुख जतोई के मामलात देख लीजिए। पीपल्स पार्टी ने जो जराइम किए हैं इस शहर और इस सूबे के साथ, उसमें हमेशा MQM का ताउन उससे हासिल रहा है। इस्लामाबाद के सेक्टर E11 में लड़के और लड़की को बरहना करके तशद्दुद का निशाना बनाने के केस में अहम मोड़ आ गया। मुतासिर लड़की अपने बयान से मुनहरिफ हो गई। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अतार रब्बानी ने उस्मान मिर्जा और दीगर मुल्ज़िमान के खिलाफ नाज़ेबा वीडियो बनाने, तशद्दुद और ब्लैकमेलिंग केस की समाअत की। मुतासरा लड़की ने अपने बयान में कहा कि सारा मामला पुलिस ने बनाया, किसी भी मुल्ज़िम को नहीं जानती। लड़की का बयान हल्फी अदालत में जमा करा दिया गया। जराह के दौरान मुतासरा लड़की ने 16 जुलाई को जेल में मुल्ज़िमान की शनाख्त से मुताल्लिक़ कहा कि उसने कोई दस्तखत नहीं की। अदालत ने समाअत 18 जनवरी तक के लिए मुलतवी कर दी। लाहौर के इलाके कहना में टारगेट किलिंग, नामालूम अफराद ने कार पर फायरिंग करके मियाँ बीवी की जान ले ली, जबकि बेटा जख्मी हो गया। मकतूलिन की शनाख्त सलामत अली और जुबैदा सलामत के नाम से हुई है, जबकि जख्मी बेटे का नाम अमजद सलामत है। वाक़ई की CCTV वीडियो मंजर आम पर आ गई है। फुटेज में देखा जा सकता है कि फायरिंग के दौरान बेटा और बेटी जान बचाने के लिए दुकान के अंदर भाग गए थे। मुल्ज़िमान ने दुकान में घुसकर बहन भाई पर फायरिंग की। फुटेज में मुल्ज़िमान को गोलियां चलाते देखा जा सकता है। पुलिस और फॉरेंसिक टीमों ने जाए वारदात से शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं। मुल्क भर में सर्द और खुश्क मौसम। कोटली और गुजरात में हल्की बारिश, मरी समेत बालाई पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी जारी है। आज़ाद कश्मीर और कोहाट में शदीद बर्फबारी से ज़्यादातर सड़कें बंद हैं। बिजली का निज़ाम दरहम बरहम होने से शहरियों को सख्त मुश्किलात का भी सामना है। इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में भी सख्त सर्दी ने लोगों के दांत बचा दिए हैं। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क। कोटली और गुजरात में हल्की बारिश रिकॉर्ड। बालाई पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। आजाद कश्मीर में शदीद बर्फबारी से ज्यादातर सड़कें बंद हैं। बिजली का निजाम दरहम होने से शहरियों को सख्त मुश्किलात का सामना है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश के बाद यकबस्ता हवाओं ने डेरे डाल लिए। लाहौर में भी सख्त सर्दी ने शहरियों के दांत बजा दिए। कराची में भी यकबख्ता हवाओं ने सर्दी का रंग जमा दिया। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर
बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द रहेगा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में शदीद धुंध छाए रहने का इम्कान है। खेल के मैदान से तस्करा PSL 7 का। पाकिस्तान सुपर लीग एडिशन 7 की टिकटों की फरोख्त का आगाज हो गया है। 17 जनवरी तक खरीदी गई टिकट्स पर खुसूसी रियायत दी गई है। 12 साल से कम उम्र बच्चों को स्टेडियम में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। टिकट्स के हुसूल के लिए शनाख्ती कार्ड और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना लाजमी होगा। एजाज शेख की रिपोर्ट। पाकिस्तान सुपर लीग एडिशन 7 की टिकट सेल का bookme.com पर आगाज हो गया है। टिकट हासिल करने के लिए शनाख्ती कार्ड, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, फोन नंबर देना लाजमी है। टिकट के लिए इजी पैसा, जायज कैश, क्रेडिट कार्ड्स और NTFI के जरिए पैसे जमा करवाए जा रहे हैं। 17 जनवरी तक फर्स्ट क्लास और जनरल स्टैंड की टिकट्स खरीदने पर खुसूसी रायत दी गई है। प्ले ऑफ और फाइनल मैच के लिए वसीम अकरम और वकार यूनुस इनक्लोजर को हॉस्पिटैलिटी स्टैंड डिक्लेयर किया गया है। फाइनल मैच के लिए जनरल इनक्लोजर 1500 रुपए, फर्स्ट क्लास इनक्लोजर 2500 रुपए, प्रीमियम इनक्लोजर 3000 रुपए, वसीम अकरम और वकार यूनुस इनक्लोजर 4 से 7000 रुपए का टिकट सेल होगा। PSL 7 का पहला मरहला 27 जनवरी से कराची में, जबकि दूसरा मरहला 10 फरवरी से 27 फरवरी तक लाहौर में मुनक्कद होगा। इवेंट के कामयाब इनाकाद के लिए PCB मैनेजमेंट पूरी तरह मुतहरिक हो चुकी है। इजाज शेख, न्यूज़ 1, लाहौर। मुनफरद उसलूब के शायर और अदीब इब्न इंशा की आज 44वीं बरसी है। उनके शायरी मजमूए चांद नगर, दिल वहशी और इस बस्ती के कूचे में बहुत मशहूर है। उनके कलाम को मुल्क के मारूफ गुलकारों ने गाया। अब कोशिश करो इस शहर में जी को लगाना चाहे। उसने कहा चेहरा तेरा कल इसी के साथ 9 PM प्राइम न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट news1.tv। देखते रहिए न्यूज़ 1।